hypoglycemia in diabetics. What is the definition of hypoglycemia? Hypoglycemia is when the diabetic patient gets low blood sugar levels in the blood and the level less than 70 milligram per deciliter is taken as hypoglycemia. The reasons for hypoglycemia are imbalance between the glucose levels in the blood and its usage by the cells, and the usage may be more as because of excess of exercise, missing of meals, etc. Now the reasons for hypoglycemia usually are: number one, the persons or the diabetics who are on insulin therapy, they take galat measurements or wrong measurement of the insulin from the syringe or from the pen. Then timing of the insulin injection may be wrong, that may be after meals or with a long gap between the insulin injection and the meals. And then third cause in insulin dependent diabetics may be missing of meals or irregular habits. These are the usual causes in insulin taking diabetics. Then in persons who are taking oral hypoglycemic agents, this hypoglycemia usually occurs in persons having glibenclamide or glimepiride like drugs. These are called long acting sulfonylureas, and the dosage and the duration of this drug is about 24 to 36 hours. So these persons, when they don't take meals along with the drugs as prescribed by the physician, may lead to hypoglycemic episodes. Then third cause can be the persons who is a diabetic may have taken excess of alcohol. So excess of alcohol may also be a cause of hypoglycemia. Then certain psychiatric drugs and usage of salicylates may also lead to hypoglycemia. Now, why it is important to diagnose hypoglycemia? It is important because our brain and the central nervous system is highly dependent on glucose levels in the blood. If the glucose levels fall in the blood for more than a small period of time, at let's say 3 to 6 minutes, the brain function starts damaging, and it may lead to permanent damage to the brain and the central nervous system. This damage may be irreversible to the person. So this is very important to diagnose hypoglycemia in time. Now, how to diagnose hypoglycemia in the family? All the family members and the patient should be conversant with the symptoms of diabetes. They can be like anxiety, मतलब घबराहट होना, धड़कन का बढ़ना, palpitation, sweating, पसीने आना बहुत ज़्यादा, उसके बाद आवाज़ का थरथरा जाना या slurring of speech, vertigo यानी कि चक्कर आना, उल्टी और दिल कच्चा होना और बेहोशी सी की फीलिंग होना, और अपनी जो हमारी याददाश्त है वो धीरे धीरे कम हो जाना। कुछ पेशेंट्स में ये सीजर्स भी हो सकते हैं, फिट्स का रूप भी ले सकते हैं, जिसको क्या हम दौरे पड़ने लग जाते हैं। एंड इन सम पेशेंट्स इट मे लीड टू अधरंग या पैरालिसिस और हेमिप्रेसिस, and ultimately uncontrolled patients or the persons who have been neglecting hypoglycemia may lead to coma. Coma means permanent, पूर्णतया बेहोशी होना, परमानेंट बेहोशी हो जाना। तो इन सब चीज़ों को हम लक्षण कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के। ये लक्षण हमें फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट के अटेंडेंट को बताने हैं कि जब भी आपके किसी इन मरीज़ को इस तरह के आप फाइंडिंग देखो शुरू से, तो तुरंत हमें इसको कैसे उपचार करना है। हाउ टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। इसको ट्रीट करने के लिए जो अगर पेशेंट होश में है और ये सब कुछ उसको हो रहा है, शुरू के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उनको हमें क्या देना है, 4 चम्मच ग्लूकोज के आधा गिलास पानी में घोल के तुरंत देना है। पेशेंट उससे 5-10 मिनट में इम्प्रूव हो जाता है और उसके बाद
हमें क्या करना है कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट घर में इन द फॉर्म ऑफ चपाती, पराठा, ब्रेड स्लाइस और कुछ भी ऐसी बिस्किट्स वो हमें पेशेंट को देने अलॉन्ग विथ स्वीट टी, चाय बना के या कॉफ़ी बना के दें। ये इसलिए दिया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बाद में कि पेशेंट को रिकरेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अब सेकंड कंडीशन अराइज होती है जब पेशेंट बेहोश हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि पेशेंट को तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज कराना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने टाइम से पेशेंट बेहोश है और उसके ब्रेन की कंडीशन क्या है। इज इट इरिवर्सिबल डैमेज और पेशेंट इज इन रिवर्सिबल डैमेज, और इट मे बी सम अदर कॉज लाइक CVA, ब्रेन हेमरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है। नंबर 2, हमें पेशेंट को मेजरमेंट ऑफ ड्रग, इंसुलिन के बारे में बताना है। नंबर 3, हमें पेशेंट को ये समझाना है कि जो ड्रग्स आप लेते हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, उनको हमें खाने से आधा घंटा पहले लेना है और मील्स हमें मिस नहीं करनी। इन पेशेंट्स को हमें ये भी बताना है कि फास्टिंग जो है आपके लिए अच्छी नहीं है, दे शुड अवॉइड फास्ट। और ख़ासतौर पे मुसलमान भाई, जो मुस्लिम भाई हैं जो रमज़ान रखते हैं, उनमें हमें इंसुलिन की डोज को कम करके 2 टाइम करना होता है, क्योंकि खाना वो सुबह और शाम खा रहे हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें फास्टिंग के टाइम में या रमज़ान के दिनों में डोज कम करनी है, और हमें 2 टाइम की डोज करनी, जो 3 टाइम लोग आगे 3 टाइम लेते थे खाना। इसके अलावा हमें एक ग्लूकागॉन किट होती है, वो हमें घर पे रखनी चाहिए। उसमें एक इंजेक्शन होता है, एक सिरिंज है और स्वैब्स होते हैं, और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, अटेंडेंट्स को हमें बताना होता है कि जब भी आपको ये लक्षण मिले, तुरंत आप सिरिंज में इंजेक्शन भर के और IM लगा दें, इंट्रामस्कुलर लगा दें। उससे पेशेंट की तुरंत जो है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे मेरे से वीडियो लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।